Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic of our grammar that has maximum weightage in your examination. Yes, it is story writing. So, story writing is of 10 marks in your exams, and it is very much easy if you are clear about its concepts, how to write a story. Then it is the most scoring part, you can say. Okay. So in story writing you have to keep into mind a few things. The best thing in story writing is that you can explore your ideas, you can explore your creativity depending upon the idea given, or you can say storyline given to you. Okay, there is nothing wrong in story writing. You can write down according to your imaginations, and you are free to create, or you can say you are free to develop your stories in any way. You can imagine, you are free to imagine, you are free to explore your creativity. Okay, so there are few points that you have to keep into mind. There are mainly 3 points, that is content, fluency and accuracy. So first point is content. This is the most important point of the story writing. Content is the idea, basically the main idea on which you are writing your story, the storyline, the plot, and the way in which your story is going on. Okay, so it is of maximum marks, that is 6 or 7 marks content. So there are few points that you have to keep into mind while writing a good content, because the content of story is the main, or you can say the most important part of your story writing. So while writing the content of a story, you have to start with the introduction. So what you will write in the introduction? In introduction, in your examination, the question will be given, like you will be given a title of the story, or you will be given few hints based upon which you have to develop your own story. So in the hints, there will be given some characters also. There will be given a main character or some sub characters, and if the characters are not given, then you have to choose by yourself some characters. So one thing you should keep into mind, that your characters should be limited. Okay, maximum 2, 3 or 4 characters should be there. होगा क्या बेटे कि अगर आप ज़्यादा मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स आप लेके चलोगे और उनका कोई मतलब इतना रेलेवेंट रोल ही नहीं होगा स्टोरी में, आपको मतलब इन द मिडल ऑफ द स्टोरी और इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी they seem to be disappear or they seem to be obsolete, so it does not appear appropriate. आप स्टोरी में इम्पोर्टेंट जो मेन कैरेक्टर है उसको रखो, और जो 2 या 3 सब कैरेक्टर्स ही रखो, और उनका जो है कि एक एक्टिव रोल होना चाहिए, कि दे आर प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन योर स्टोरी. तो जो कैरेक्टर्स हैं वो आप चूज करते टाइम क्या दिमाग में रखोगे कि एक तो मेन कैरेक्टर होगा जिसपे वी कैन से, जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो कि एक हीरो होता है जिसपे बेस्ड पूरी की पूरी मूवी होती है. तो इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी एक मेन कैरेक्टर होता है. आप थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन होगी स्टोरी की, उसमें क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत अपने मेन कैरेक्टर को आप डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे. जैसे अगर नेम जो आपको स्टोरी मतलब जो क्लू दिया है, जो हिंट दिया है, या फिर जो आपको आउटलाइंस दी हैं स्टोरी की एग्जामिनेशन में, या तो उसमें गिवन होगा मेन कैरेक्टर का नाम. अगर नहीं है तो आप खुद से भी उसका कोई नाम दे सकते हैं, उसकी एज वगैरह के बारे में बता सकते हैं, उसका ऑक्यूपेशन बता सकते हैं कि वंस देयर वाज ए 15 years old boy, he was a student, he was studying in so and so school, या फिर once there was a farmer. ठीक है, तो आप उस जो मेन कैरेक्टर है उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बता सकते हैं, उसकी एज के बारे में बता सकते हैं, उसका नाम, यू विल राइट द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बता सकते हैं.
ठीक है। जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आप बताएंगे, मेन कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आप बताएंगे कि किस तरह का जो मेन कैरेक्टर है वो किस तरह का पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग किस तरह का है, ही वॉज ए काइंड मैन या फिर ही वॉज ए क्रूअल मैन, ही वॉज एन ऑनेस्ट और ही वॉज ए थीफ। ठीक है, इस तरह के आप कैरेक्टर्स में उसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करेंगे। फिर क्या है कि सब कैरेक्टर्स आते हैं, जो स्टोरी में सब कैरेक्टर्स हैं 3 या 4, उनके बारे में भी आप बताएंगे और उनका रिलेशनशिप क्या है मेन कैरेक्टर से वो भी आप मेंशन करेंगे। ओके, और फिर इंट्रोडक्शन में ही आप क्या लिखेंगे, प्लेस के बारे में, जहाँ पे ये जो प्लॉट है, जो स्टोरी लाइन क्रिएट की गई है, उस प्लेस के बारे में आप पर्टिकुलर उस शहर का नाम बता सकते हो। ओके, या फिर उस पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं आप बता रहे हैं तो उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। जैसे कई बार क्या है कि कई स्टोरीज वगैरह आप मतलब जो सस्पेंस या हॉरर या फिर कोई ऐसी स्टोरी है जो फॉरेस्ट वगैरह में हैपन हुई है उसके बारे में आप बता रहे हो, तो जो फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन है आप वो दे सकते हैं कि देयर वाज ए थिक फॉरेस्ट, नो वन वॉज देयर। ओके, तो इस तरह से क्या है कि आप उस जगह का डिस्क्रिप्शन थोड़ी 2 और 3 लाइन्स में बताएंगे। तो ये तो है आपका स्टोरी का इंट्रोडक्शन। ओके बेटा, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया कि कैरेक्टर्स और जो जिस जगह पे ये जो स्टोरी हैपन हुई है वहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगे। सेकंड मेन थिंग इसमें क्या आती है कि प्लॉट ऑफ द स्टोरी। प्लॉट ऑफ द स्टोरी मतलब जो स्टोरी लाइन, मेन स्टोरी लाइन जो है वो अब शुरू होती है। ठीक है, और यही जो है जो प्लॉट है, जितना इंटरेस्टिंग आपका प्लॉट होगा स्टोरी का उतनी ही इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी होगी। देखो, स्टोरी की एक जो मेन रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी इंटरेस्टिंग। जो रीडर है वो उसको शुरू से लास्ट तक ये लगना चाहिए कि हाँ इंटरेस्ट आ रहा है और उसको वो मतलब पढ़ते रहे। ऐसा नहीं है कि जो रीडर है वो खुद ही कंफ्यूज हो जाए कि पता नहीं शुरू में क्या हो रहा था, ये कैरेक्टर्स का रोल कहाँ गया, या फिर मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, स्टोरी लाइन है वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसमें, और इट शुड बी इंटरेस्टिंग आल्सो। ये भी एक मेन चीज है कि जो इंटरेस्ट है वो रीडर का इंटरेस्ट बनना चाहिए। अब इंटरेस्ट कैसे बनेगा कि कोई भी, जैसे क्या है कि कुछ भी मतलब सिचुएशन से जैसा हम सोचते हैं, स्टोरी लाइन को हमने जैसे आउटलाइंस हमने रीड की, उसके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में कोई इमेजिनेशन आई, उससे कुछ यू टर्न होता है एकदम से। जैसे सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे, कोई भी जो गिवन कैरेक्टर्स हैं, जो जगह दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उस सिचुएशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, एकदम से प्रॉब्लम अराइज होती है तो क्या है कि रीडर्स का इंटरेस्ट बनना शुरू होता है कि अब क्या जो मेन कैरेक्टर है उसका क्या रिएक्शन होगा, वो इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगा। और जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करनी वैसे तो बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है, इतना मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम लिख रहे हो उस सिचुएशन में, मतलब स्टोरी में आप कुछ भी प्रॉब्लम बता रहे हो, तो उसमें आप ध्यान क्या रखेंगे कि दैट प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेबल, रीजनेबल, सेंसिबल। मतलब क्या है कि आपको कोई एकदम से ऐसी कोई हाइपोथेटिकल या एकदम से ऐसी सुपर नेचुरल चीज लेके नहीं आनी है। कि कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर ये बता दिया ना कि स्टोरी में यू आर फ्री टू एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी, तो वो इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करते हैं कि उसमें मतलब जो चीजें हम अनबिलीवेबल चीजें और जो मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं है वो लेके आ जाते हैं। इट शुड नॉट बी डन बेटा। जो भी चीज आप प्रॉब्लम लिख रहे हो, कि जैसे कई बच्चे क्या हैं कि स्पिरिट्स वगैरह या फिर भूत वगैरह इन सब की, या फिर सुपरमैन या फिर मतलब सुपर नेचुरल जो पावर्स होती हैं उनके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें क्या है कि आपको स्टोरी में अवॉइड करनी है, ये चीजें नहीं लेके आनी है।
जो मतलब प्रॉब्लम डे टू डे की जो हम अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, जो हैपनिंग मतलब जो सबकी लाइफ में होती है, कुछ उस तरह की प्रॉब्लम्स जो रीजनेबल लगे रीडर को या फिर जो सेंसिबल लगे, ठीक है, उस तरह की प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं।